Okay, let's start, I think. Right. Hello, and I'm Abhilash Sundaram, and I have secured All India Rank 421 this time in UPSC Civil Services 2023. And through this platform, I'd like to share my journey, resources, and with all the fellow aspirants. So, and first and foremost, I'd like to thank UPSC Time for giving me this platform to share that. All right. Since I'm audible, let's start. About me, my background, and about my journey. So I am Abhilash Sundaram, and I was born and brought up in Bahadurgarh city. It's a small town in the outskirts of Delhi, and I did my schooling from here, and then I after that I went on to do. उसके बाद मैं हिंदू कॉलेज में चला गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में to do my BSc Physics honors. And BSc Physics honors, and frankly I was a non-medical student, science का student था, तो मुझे UPSC के बारे में ज़्यादा idea भी नहीं था. It was my parents who nudged me into this field. They were the ones जिन्होंने मुझे बताया कि this is an area which you can think about, जिसके बारे में आप सोच सकते हो और आप कर सकते हो, because इससे सिर्फ आपको personal satisfaction भी नहीं होगी, you can also serve the nation. तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, आप पर्सनली सेटिस्फैक्शन हो सकती है, आपको you'll have diverse portfolio, work experience will be great, and unparalleled platform मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको प्रोवाइड करती है. So that is that. And apart from that, I have been allocated Indian Trade Services, which I forgot to mention. Apologies. And I'll be joining training soon for that. And the training happens in Indian Institute of Foreign Trade, Delhi itself. All right. I did my BSc Physics honors from Hindu College, and then I started my UPSC journey after the college. There was a brief period, बीच में एक छोटा सा period था when I taught high school students geography उनको मैंने पढ़ाया था. So that is that. So in this journey I've given four attempts. I secured all India rank for 21 in my fourth attempt. तो ये journey ऐसी थी कि मैंने right out of college 2020 में I gave UPSC, and I did not prepare. It was an unprepared attempt, and since I did not have guidance, so I think मैंने दे दिया वो. I think that was a mistake. I would not recommend कि कोई भी ऐसे करे without preparation. They should not give. That I did not clear that. Next attempt मैंने थोड़ा सा prepare करना start किया. That was the period COVID lockdown था घर पे. I started studying and all. Second attempt I could not clear prelims because of CSAT. I cleared GS in that. And third attempt में I cleared my. So third attempt I was very serious. I started seriously preparing for civil services. Was वाले third attempt में, and in third attempt I cleared prelims with a great margin. I also cleared forest service का cutoff as well in that. So in that I cleared CSAT, but unfortunately I could not clear mains in that attempt. I missed it by 1 marks, the cutoff. And fourth attempt I gave again, and I cleared all the stages, and I secured all India rank for 21 in that. So this was the journey. Apart from it, I've also appeared in Haryana Civil Services twice. I've cleared Haryana Civil Services twice, HCS. इस साल HCS 2024 में मेरी rank 37 थी, तो I've done that as well. तो I would say कि मेरी journey has been about a lot of failures, and हर failure से I've learned a lot, and I learned and I did not give up. It was like that. So like even Edison said, there's a very famous quote on it that I have not failed 1,000 times. I've only found 10,000 fails that do not work. तो I would सभी aspirants को I would recommend कि आप failures को failure की तरह मत लीजिए. It is a stepping stone towards success. तो आप जब भी fail हो तो आप उसे सीखिए कि आप उसे क्या सीख सकते हैं, कि मेरी क्या गलती थी, बट उस प्रोसेस में आपको ऑनेस्ट होना होगा अपने साथ. So that was that. So I think let's start with the resources and strategy for different stages of civil services exam. तो civil services के exam में there are 3 stages. There is prelims, there is mains, and there is interview. तो prelims वाले stage में prelims actually is one of the stages जिसमें लोग filter out होते हैं, screen out होते हैं. About जितने भी लोग होते हैं 5-6 lakh people appear, only 10,000 odd people qualify. तो आपको make sure करना है कि आप qualify करें prelims को. तो there are various subjects in it. So let's start with that. तो पॉलिटी के लिए तो यू हैव टू स्टिक टू दीज स्टैंडर्ड सोर्सेज. जैसे कि लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड सोर्स है लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, तो आपको वो करना है. दैट इज द ओनली बाइबल फॉर इट. तो आप उसको अच्छे से करें. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आई थिंक ये बुक्स आप अच्छे से करेंगे तो आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे.
ज्योग्राफी के लिए आई थिंक द 4 NCERTs 11th और 12th की जो NCERTs हैं दे आर मोर देन इनफ। तो आप उनको करेंगे तो आपको ज्योग्राफी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ज्योग्राफी में क्या ध्यान देना है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दो हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स में आती है इट इज बेस्ड वो फोकस्ड है लोकेशंस पे। फॉर इंस्टेंस कि IR में इंटरनेशनल रिलेशंस में चल क्या रहा है जियो पॉलिटिक्स में, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल पैलेस्टाइन इशू, देयर इज रेड सी क्राइसिस गोइंग ऑन। तो आपको उन पे ध्यान देना है कि इन लोकेशंस पर इनके अराउंड क्या हो रहा है, रेड सी के अराउंड कंट्रीज कौन सी हैं, इसराइल पैलेस्टाइन का जो चल रहा है तो फिर कौन कौन सी फेमस सिटीज हैं, कौन कौन सी खान यूनिस कहाँ पर है, इसराइल का टेल अवीव कहाँ पर है, जेरूसलेम कहाँ पर है। आपको अगर प्रीलिम्स में आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ इनको रेंज कर दीजिए, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दैट ज्योग्राफी में। लेट्स मूव टू इकोनॉमी नाउ। इकोनॉमी के लिए द बेस्ट सोर्स वुड बी विवेक सिंह। विवेक सिंह की बुक है, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक, कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लैरिटी हो जाएगी उससे। लाइक आई सेड ज्योग्राफी की तरह इकोनॉमी में भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस यू कम वेरी एनालिटिकल प्रीलिम्स में इकोनॉमी के। फॉर इंस्टेंस कि रेपो रेट में चेंज होगा तो हाउ विल इट अफेक्ट मनी सप्लाई इन इंडिया, हाउ विल फेड कट इन US अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी, मनी सप्लाई एंड ऑल दैट। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है इकोनॉमी के अंदर कि आपको सब समझ आए इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रैमिंग थिंग्स। तो आपको इस पे ध्यान देना है। विवेक सिंह आपको देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड इको 500 MCQs, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 500 MCQs, आपने वो कर लिया तो आपकी इकोनॉमी पे अच्छी कमांड आ जाएगी काफ़ी। उसके अलावा करंट अफेयर्स इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इकोनॉमी इज बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, तो आप इन दोनों भी ध्यान दें। एनवायरमेंट इज द नेक्स्ट बिग सब्जेक्ट। एनवायरमेंट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स के 20-25 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, बिकॉज सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स एक साथ होता है। तो इस वजह से फॉरेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सिविल्स के प्रीलिम्स में। तो आपको क्या क्या करना होगा इसके लिए, स्टैंडर्ड बुक्स हैं शंकर IAS, एंड देयर इज अनदर बुक जो मैंने फॉलो करी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जैसे कि वैशाली आनंद, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, तो आप उनको फॉलो करें। और एनवायरमेंट के लिए देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, आवर प्लैनेट, डेविड एटनबरो उनको उसको नरेट करते हैं, उसके 2 सीजन्स हैं। बट आई रिकमेंड दिस आफ्टर आपने किताबें पढ़ ली हो और आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम है, आप इससे स्टार्ट ना करें। तो आवर प्लैनेट इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री, उससे आपको अलग अलग बायोम्स, अलग अलग स्पीशीज का आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसी कैसे बायोम्स में कैसी स्पीशीज मिलती है, उनकी क्या यूनिक ट्रेट्स होते हैं। और प्रीलिम्स में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस डॉक्यूमेंट्री से कई क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर कि कौन सा एनिमल वुडन स्टिक बनाकर एंट्स को बाहर निकालता है पेड़ से, वो उस नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था, एंड दैट इज ओरांगुटान, वो करता है ऐसे। तो आपको ये ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम इट आप इंडियन स्पीशीज का आप एक लिस्ट बनाइए, एक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, उस पर 22 ऑड स्पीशीज हैं। तो आप उन स्पीशीज पे तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपको उन स्पीशीज का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो उनका IUCN स्टेटस क्या है, वो कहाँ मिलती हैं, किस हैबिटेट में रहती हैं, वो कौन से नेशनल पार्क्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैपिंग के लिए नेक्स्ट बिग चीज़ जो प्रीलिम्स के अंदर टॉपिक है, थीम इज मैपिंग। तो मैपिंग के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन की कोई मैगजीन आती है, विजन IAS करता है, देयर आर सम अदर्स जो करते हैं, तो आपको उन पर ध्यान देना है, उनको पढ़ना है जरूर, और स्पेशली मैप्स पे ध्यान देना है। ये करना है, एटलस पे ध्यान देना है, वर्ल्ड मैप पे, जैसे कि कॉन्गो रिवर। आप एक चीज को ध्यान रखना, UPSC की प्रीलिम्स में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, दीज आर देयर फेवरेट कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका के ऊपर उन्होंने 2-3 बार रिवर्स के बारे में पूछ के, कॉन्गो रिवर किस किस कंट्री से फ्लो करती है। अगर आपने मैप देखा है कॉन्गो रिवर का, तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो इसमें आपको क्रैम भी करने की जरूरत नहीं, ये आपको देखना है मैप्स को रोज, वर्ल्ड मैप को एटलस लीजिए। आप जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे 2 महीने, तो आप उसमें रोज देखिए 10 मिनट, 5-10 मिनट, ऐसा नहीं लगेगा आपको। तो आप ये कीजिए। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडियन रिवर्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि अगर आपको मैं पूछूं पपीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको इंस्टेंटली बताना है कौन से स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने भी कुछ बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व। तो ये नेशनल पार्क का मैंने एक मैप ले लिया था, एंड इस मैप पे मैंने बेसिकली जितने भी नेशनल पार्क हैं, अब तो 106 हो चुके हैं, उस टाइम पे जब मैंने बनाए थे तो 104 नेशनल पार्क्स थे। तो 104 नेशनल पार्क सारे मैंने मैप कर लिए थे, एंड देन मैंने इसके पीछे सारे लिख लिए थे कौन से स्टेट में कौन सा मिलता है।
कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में कौन से मिलते हैं, उड़ीसा में कौन सा है, अंडमान निकोबार में कौन सा है। तो आपको ऐसे करके नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए स्पेशली करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए मत करना, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में मोर देन 550 हैं, तो वो दैट इज नॉट विद इन आवर कैपेसिटी कि हम उसको याद नहीं कर सकते। दैट इज दैट। आपको नेशनल पार्क इनकी आपको लोकेशन अच्छे से याद करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। तो ये रिसेंट ईयर्स में इसकी काफी वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है। इसके क्वेश्चंस 7-8 क्वेश्चंस आने लगे हैं हर साल, 8 कभी कभार 10 भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर आपका हिस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मेरा नहीं था, तो मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगा था पढ़ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एंशिएंट मिडिवल के लिए आप कर्सरी रीडिंग दो, या तो एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए तमिलनाडु वाली, या फिर 11th-12th की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। और आप एक बुक होती है पूनम दलाल दहिया, आई वुड रिकमेंड आप पूनम दलाल दहिया की बुक लीजिए। उसमें एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री दोनों है, आप उसको देखिए। और स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए क्रोनोलॉजी पे, कि गुप्ता पीरियड कब था। आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में कि वैदिक पीरियड से इंडस वैली पीरियड आया, फिर उसके बाद मौर्यन पीरियड आया, और उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आया, फिर गुप्ता पीरियड आया, फिर ऐसे कैसे करते करते क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। और उन एम्पायर्स का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द मेजर आर्किटेक्चर उन्होंने जो किया। से गुप्ता पीरियड इज एसोसिएटेड विद टेंपल आर्किटेक्चर इन इंडिया, इट इज द गोल्डन पीरियड। टेंपल आर्किटेक्चर स्टार्ट उनके अंडर हुआ था, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और टेंपल्स, कुछ फेमस टेंपल्स की लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इंडिया में। जैसे फॉर इंस्टेंस एक बार 64 योगिनी टेंपल पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आप कर सकते हैं इनको। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया की बुक पढ़नी है, और वो बहुत सेलेक्टिवली रीडिंग करनी है। उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर है आर्किटेक्चर के ऊपर, तो आपको ध्यान देना है कि आपको उस पर बहुत ध्यान से पढ़ना है उसको, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर प्रीलिम्स में भी काम आता है और मेंस में बहुत काम आता है। मेंस में वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर है। उसके अलावा आपको म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, आपको पता होना चाहिए कि 6 क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं इंडिया के, म्यूजिक के बारे में, फोक म्यूजिक थोड़ा बहुत। और आप ज़्यादा कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया पे फोकस करें, सदर्न इंडिया पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले जो फोक म्यूजिक और फोक डांसेस हैं वो यूजुअली आ जाते हैं कि संकीर्तन कहाँ पर होता है, ऐसे करके। तो आप उस पर ध्यान दीजिए नितिन सिंघानिया बुक पे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद मेजर चंक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन प्रीलिम्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, तो आप उसको पढ़िए अच्छे से। करंट अफेयर्स की पीटी 365, इट्स एन एनुअल कंपाइलेशन, आप उसको बहुत अच्छे से करें, आपका साइंस एंड टेक सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा फॉर साइंस एंड टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक में दे ऑल्सो आस्क कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो 9th-10th की एनसीईआरटी आपको साइंस की जो हम पढ़ते थे, उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको, कि आपको पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फर्क होता है, किसमें सेल वॉल होती है और किसमें नहीं होती है। आपको ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल का क्वेश्चन 2-3 साल पहले प्रीलिम्स में आया था और वो एनसीईआरटी में था। तो आपको 9th-10th की एनसीईआरटी करनी है, करंट अफेयर की मैगजीन। ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी स्लाइटली डिफिकल्ट, तो आपको पता होना चाहिए डीएनए, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, जीन एडिटिंग, क्रिस्पर कैस9 कैसे काम करता है। इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल सिंगल सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कैसे होती है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, 3 पेरेंट बेबी क्या होता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो बायोटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम देखें करंट अफेयर्स का वेटेज इन प्रीलिम्स, दैट इज़ वेरी लेस। तो एंड प्रीलिम्स के लिए मेरा 2 बार प्रीलिम्स, 3rd अटेम्प्ट एंड 4th अटेम्प्ट में दोनों में क्लियर हुआ है। एंड दोनों 3rd अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 110 मार्क्स, एंड इन द 4th अटेम्प्ट 2023 इन विच आई क्वालिफाइड, उसमें आई स्कोर्ड 117 मार्क्स। तो आपको कंसिस्टेंटली हाई स्कोर करने के लिए प्रीलिम्स में एकमात्र सोल्यूशन इसका ये है कि आपको स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन गोइंग आफ्टर करंट अफेयर्स, और सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, स्पेक्ट्रम का नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। करंट अफेयर्स की मैं आपको वेटेज कम रखनी है, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़िए टाइम आखिरी में टुवर्ड्स द एंड, तो दैट इज दैट। और अब दिस इज जीएस इन प्रीलिम्स। हम इसके अलावा सीसैट की बात भी करते हैं। सीसैट अब गेम चेंजर हो गया प्रीलिम्स के अंदर, बिकॉज सीसैट लास्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स में बहुत डिफिकल्ट हो गया था।
एंड स्पेशली 2023 का CSAT जिसमें इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। तो उसमें आपको क्या करना होगा ना, अगर आपका CSAT आपको लगता है वीक है तो आपको आई थिंक क्लासेस कर लेनी चाहिए इसकी कुछ। अपार्ट फ्रॉम इट CSAT में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करिए कि अगर आपको लगता है आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट यहाँ से करें, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आते हैं और विद इन दोज 2 आवर्स आप 80 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा और इसमें बहुत अग्रेसिवली आपको स्किप करना है क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो 1 मिनट में आप 1 मिनट दीजिए क्वेश्चन को, अगर आपसे हो रहा है तो आप उसे सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड कर जाइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स, इसमें वन ऑफ दोज थीम्स जिसमें आपको, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना स्कोर, क्योंकि 25-27 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके मैक्सिमम क्वेश्चन करें और मेक श्योर करें कि आपके क्वांट्स भी थोड़ा सा बेटर हो जाए और रीजनिंग पे आप ज़्यादा फोकस करें। क्यूब एंड डाई के क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं आपको, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आसान आते हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है। तो आपका CSAT नहीं रुकेगा, क्योंकि CSAT की आपको बस क्वालिफाई करना है। अगर आपका 69 मार्क्स भी आ रहे हैं, 70 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि वो मार्क्स नहीं ऐड होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि GS पे प्रायोरिटी रखनी है, पर CSAT भी आपको 2-2 घंटे करना है। अपार्ट फ्रॉम इट, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक रामबाण तो यही है कि आपको PYQs पिछले 20 से 25 साल की एनालाइज करने होंगे इंटेंसिवली। मैंने 1995 से लेके 2022 तक की मैंने प्रीलिम्स के PYQs सारे सॉल्व किए थे काफी अच्छे से। तो आपको क्या मेक श्योर करना होगा कि आप सारे करें, सॉल्व करें, उनको लर्न भी करें। अगर आपको कुछ पता नहीं था तो आप उसको याद करें। और एक एक्स्ट्रा टिप एंड ट्रिक ये होगी कि आप, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने आंसर तो देख लिया कि चौथा पॉइंट आंसर है, चौथा ऑप्शन आंसर है, पर जो बाकी 3 ऑप्शन हैं उस ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर, आप उनके बारे में भी कुछ पढ़ें, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है प्रीलिम्स के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और एंशिएंट मिडिएवल में स्पेशली ये होता है। तो आप एंशिएंट मिडिएवल में तो पक्का पिछले 20-25 साल के क्वेश्चंस करें और उनके ऑप्शन सारे याद कर लें, क्योंकि आपको एज मिलेगा फिर प्रीलिम्स के अंदर, आपको प्रीलिम्स नहीं रुकेगा बेसिकली फिर। सो आई थिंक दैट इज दैट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रैटेजी है मोर और लेस। अब हम लेट्स मूव ऑन टू मेंस। ओके, सो लाइक इट सेड कि मेंस इसका नाम है, ये मेन ही एग्जाम है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके मार्क्स, ये सबसे बिगेस्ट चंक है हमारी प्रिपरेशन का, एंड इसके मार्क्स ऐड होते हैं हमारे फाइनल स्कोर के अंदर। तो आपको हमारे एसए का पेपर है और GS के 4 पेपर हैं, उसके अलावा लैंग्वेजेस के 2 पेपर हैं हमारे पास, एंड ऑप्शनल्स के 2 पेपर हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एसए से एंड हम फिर ऑप्शनल तक जाते हैं। ओके, तो एसए के अंदर क्या रहता है कि रिसेंट ईयर्स में ऐसे गेम चेंजर बन गया है। तो एसए का जो पेपर है, आपको उसमें क्या करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स, मेरा एसए में स्कोर 122 था इन CSE 2023, विच इज मॉडरेटली गुड स्कोर। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने उसमें क्या क्या किया था। कि कोट्स की कंपाइलेशन करी थी मैंने टॉपिक वाइज, एजुकेशन पे कुछ कोट्स, हेल्थ पे कुछ कोट, विमेन पे कुछ कोट, अगर कुछ डेमोक्रेसी से कुछ रिलेटेड कोट्स, कुछ हमारे को अलग अलग कि विजडम पे कुछ कोट एंड इनोवेशन पे कुछ कोट्स। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास कुछ कोट्स होने चाहिए। आपको एक चीज और करनी है, आपको एसए के पेपर में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप जेनेरिक ऐसे मत लेके आए कि पेस्टल अप्रोच आपने बस स्टार्ट किया, एनालाइज किया, बस आपने पेस्टल अप्रोच लगा दी। पहले आप टॉपिक वो सेलेक्ट करें उन 4 में से जो आपको सबसे ज्यादा समझ आ रहा है। आप इन चीजों की टेंशन मत लीजिए कि बाकी लोग भी यही ले रहे होंगे या फिर बाकी लोग क्या ले रहे होंगे। आप बस ये देखिए कि आपको क्या आता है, क्योंकि आपको जो आता है आप सबसे अच्छा वो लिखेंगे और आपको मैक्सिमम स्कोर उसमें आएगा। तो आपको ये करना है कि उन 4 में से आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसमें है। और अनदर थिंग टू ऐड इज कि आपको मेक श्योर करना है कि आप क्वेश्चन को डिमांड हिट करें, आप डिसाइफर करें उसका मतलब क्या है टॉपिक का। जैसे कि 2022 के मेंस में जिसमें आई मिस बाय 1 मार्क्स, उसमें मैंने अपने एसे के अंदर एक टॉपिक के अंदर मैंने इंटरप्रिटेशन गलत कर ली थी उसकी। तो उस वाले साल मेरे 109 मार्क्स आए थे एसे में, एंड दिस टाइम मेरी इंटरप्रिटेशन ठीक थी तो मेरे 122 मार्क्स आए। इस बार मैंने उस पर लिखा था ऐसे, फर्स्ट ऐसे था ऑन द टॉपिक दैट गेम के बीच में था ना कि इनोवेशन इज लाइक अ गेम,
it only happens when the competitor is also playing. It was like that. तो it was basically कि innovation तब होती है जब दो लोग compete कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. तो मैंने उसमें बहुत diverse anecdotes, diverse thoughts लाया था उसके अंदर. चार्ल्स डार्विन से लेकर कि जैसे हमारे चार्ल्स डार्विन को लेकर आया कि उसने कैसे बताया अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के अंदर कि दो स्पीशीज compete करती है तभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. हमने दिखाया स्पेस रेस हुई बिटवीन यूएस लेड ब्लॉक एंड यूएसएसआर लेड ब्लॉक. उसकी वजह से स्पेस रेस हुई तो इनोवेशन हुई. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का एक कंपटीशन हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस की बात, गोलकनाथ केस एंड वेरियस अदर केसेस की बात, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी. तो आपको ऐसे एनेक्डोट्स लाने हैं जिससे एग्जामिनर को लगे कि आप बहुत ही वेल रेड हैं और आपने बहुत ही डाइवर्स लाए हैं और आपको टॉपिक समझ आ रहा है और आपको टॉपिक से स्टिक करना है कि आपके सारे जितने भी एनेक्डोट्स, एक्सप्लेनेशंस हैं वो दे शुड बी ऑल रिलेटेड टू द टॉपिक. और आप मेक श्योर करें, जैसे मेरा क्या रहता था स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसे, हमने ये कर लिया. स्ट्रक्चरिंग एंड कोहेरेंस आपको मैं समझाता हूँ ऐसे कि कैसे करनी है. आप टॉपिक को लीजिए, आप समझिए. अगर आपको उससे रिलेटेड कोई कोट पता है तो आप कोट ऊपर लिख दीजिए. आप उसका ऑथर, जो भी कोट का ऑथर है उसको आप लिख दीजिए साइड में. आपको नहीं पता तो एनोनिमस लिख सकते हैं आप उसमें. एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग एक एनेक्डोट विच इज बहुत इंपैक्टफुल एनेक्डोट जो उस टॉपिक से रिलेटेड है. जैसे कि मैंने अभी अपना फर्स्ट ऐसे आपको बताया, उसमें मेरा एनेक्डोट स्टार्टिंग का था. इट वाज द एनेक्डोट वाज रिलेटेड टू ओपनहाइमर वर्सेस हाइजेनबर्ग एंड दिस वाज मैनहट्टन प्रोजेक्ट. और उस साल ओपनहाइमर मूवी भी आई थी. तो आई रोट दैट कि हाउ ओपनहाइमर जो यूएसए में था वर्सेस हाइजेनबर्ग जो जर्मनी में था, उनके बीच में कंपटीशन की वजह से न्यूक्लियर वेपन बना था. दिस इनोवेशन हैपेंड बिकॉज दो ब्रिलियंट माइंड्स वर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड उसकी वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था. तो ये दिस वाज माय एनेक्डोट स्टार्टिंग का. एंड उसके बाद आप ये एनेक्डोट लिखने के बाद आप फिर अपना थीसिस लिखिए कि आपको इस टॉपिक से क्या समझ आ रहा है. आप इस एसे के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस को टच करेंगे, कि आप बताएंगे कि ये टॉपिक का मतलब क्या है, कि ऐसा होता है कि अलग अलग फील्ड्स में ये एप्लीकेबल है, व्हाट, व्हाई, हाउ, आपको वो एक्सप्लेन करना है. एंड आप टुवर्ड्स द एंड आई आल्सो मेक श्योर कि आई एम आल्सो राइटिंग एन एंटीथीसिस. तो आप एंटीथीसिस लिखिए. एंटीथीसिस में आप 2 पेजेस दीजिए. आप बताइए कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कंपटीशन हो तो अच्छी बात है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपटीशन, मैंने कंपटीशन का लिख दिया कि देयर आर सम एग्जाम्पल जिन्होंने विदाउट कंपटीशन इनोवेट किया. लाइक बुद्धिज्म, जब बुद्धा, गौतम बुद्ध व्हेन ही वेंट आउट, तो उनको कंपटीशन नहीं, उन्होंने खुद रियलाइज किया. दैट वाज सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी फॉर हिम. तो आप, मैंने वो एग्जाम्पल लिखा. तो आप ऐसे से करके आप कुछ डाइवर्स एग्जाम्पल्स लिख देते हैं कि इनोवेशन जरूरी नहीं है कि कंपटीशन से ही हो. सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनोवेशन के लिए, ड्राइव करते हैं उसको. तो अब मैंने वो लिखा. एंड टुवर्ड्स द एंड आप सम अप कर दीजिए, समरी लिख दीजिए ऐसे की. तो आपको एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपने हिट भी कर दिया, डाइवर्स एग्जांपल्स भी लिख दिए, स्ट्रक्चरिंग अच्छी करी है, आपने एंटी थीसिस भी बता दी कि एक काउंटर व्यू भी एग्जिस्ट करता है, और फिर आखिरी में आपने समरी भी लिख दी उसकी. और आप मेक श्योर कीजिए कि जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स है वो बड़ी आप अच्छे लिखे. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक अब्रप्टली जंप कर रहे हैं. कि आप लिख सकते हैं मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक टू अनदर टॉपिक. इट इज नॉट ओनली ट्रू इन पॉलिटी, इट इज ऑल्सो ट्रू इन हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स इन दैट हैव बीन सीन. तो आप ऐसे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं फिर ये. तो दैट इज ऐसे. एंड उसके अलावा हम GS1 की बात करते हैं. GS1 में ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंसी सब्जेक्ट्स हैं. तो आपको मेक श्योर करना है, माय ऑप्शन वाज ज्योग्राफी, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्योग्राफी पढ़ने के लिए फॉर दैट. तो ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन आते हैं. तो आपको ज्योग्राफी, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालें, क्योंकि ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट देखिए 40% ऑफ द पेपर है ना. तो आपको बहुत अच्छे से उसको हिट करना है, आपको बहुत अच्छे से एड्रेस करना है उनको. तो आई यूज्ड टू डू दैट. सोसाइटी के 6 क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज द नेक्स्ट बिगेस्ट सेगमेंट जो लोग इग्नोर करते हैं. तो आपको सोसाइटी में कुछ हमारे को सिलेबस में दे रखे कीवर्ड्स. हमारे को दे रखा है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें को क्या क्या दे रखा है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स. तो आपको इन सब टॉपिक्स पे आपके 2 पेजेस रेडी होने चाहिए हर चीज पे. ग्लोबलाइजेशन की आपकी डेफिनेशन, आपको मतलब ग्लोबलाइजेशन का तो इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दिस इसकी डेफिनेशन ही है ग्लोबलाइजेशन की. कोट एक रेडी होना चाहिए कि देयर इज अ वेरी फेमस पर्सन, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, कि हु सेड कि आर्ग्यूइंग अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इज लाइक आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ ग्रेविटी. तो मेरा कंक्लूजन ये ऑलवेज सेट था
कि ये दिखाता था कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कितनी ज़्यादा है हमारी वर्ल्ड में। तो आपको ये होना चाहिए कम्युनलिज्म के, आपके कुछ कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, इनकी कुछ कमिटीज भी है, सचर कमेटी, अदर आरपी मिश्रा कमेटी। तो आपके ये वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में अगर आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आप प्रिपेयर करके आए हैं, और क्वेश्चन को हिट कीजिए। इन टॉपिक्स में आप इंट्रो में डेफिनेशन लिखिए, फिर आपको देखेंगे 10 मार्कर्स में हमेशा 2 सब हेडिंग्स होती हैं और 15 मार्कर्स में 3 सब हेडिंग होती है मेंस में। तो आप वो अपने आंसर को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट हेडिंग एंड सेकंड हेडिंग। तो 5 पॉइंट्स आप यहां लिखिए, 5 पॉइंट्स वहां लिखिए, और वे फॉरवर्ड इफ यू कैन फिट इन तो अच्छा लगता है। और कंक्लूजन तो लिखना ही है, मैंडेटरी है। और कंक्लूजन में इफ यू कैन, अगर आपको कंक्लूजन पता है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था वो टॉपिक, तो आप उसमें कमिटीज का नाम लिखिए कि मैंने अभी बताया कि लाइक आई सेड कि आरपी मिश्रा कमेटी है, साचर कमेटी ने बोला इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाइए। उसके अलावा सेकेंड एआरसी बोलती है डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी होनी चाहिए कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए। तो अगर आप ये लिखेंगे ना कम्युनलिज्म वाले क्वेश्चन में, तो उनको अच्छा लगेगा काफी, दे विल अप्रिशिएट। और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे तरीके होते हैं। एसडीजीज 17 एसडीजीज आपको याद करने पड़ेंगे टू कंक्लूड एनी आंसर। आपको याद होना चाहिए एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 2 क्या है, एसडीजी 10 क्या बोलता है, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन बोलता है एनवायरमेंट में। आप सीधा लिख दीजिए अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। सो दी है GS1 की स्ट्रैटेजी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, हम GS2 में मूव करने से पहले मैं आपको एक बार आई थिंक आई शुड टेल यू समथिंग अबाउट मेंस के अंदर जो GS के आंसर्स लिखने होते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको रिसोर्सेज तो अब जैसे मैंने बताया ही था कि रिसोर्सेज आर द सेम कि आप करें। आप ना मेंस के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन स्लो रही है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप टेस्ट पेपर्स ले आएंगे, सेक्शनल पेपर्स ले आइए GS1 2 के, तो आप उनके टेस्ट पेपर्स के जो सोल्यूशन है, जैसे फोरम IS की MGP होती है, विजन की टेस्ट सीरीज इज वेरी गुड, तो आप इन सब की टेस्ट सीरीज के आप आंसर्स ला सकते हैं मार्केट से खरीद के, और आप उनके आंसर्स पढ़ें और आप उनके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे। टाइम मैनेजमेंट पैरामाउंट है। आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेंस के अंदर। आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू होती है मेंस में। मेंस के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। तो आपको इंट्रो लिखना है, उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। अगर ज्योग्राफी है तो इंडियन मैप बना दिया, वर्ल्ड मैप बना दिया, और ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 10-15 सेकंड में बना दो। और आपको बहुत सुंदर मैप नहीं बनाना है, बस जल्दी जल्दी बना के आपको रफ डायग्राम बनाना है, और उस पर आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक्स, मतलब आपको थोड़ा लेबल करना पड़ेगा उसको। तो आप इसका मेक श्योर करें। अगर आपको मैप डायग्राम नहीं है तो आप पाई डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्वेश्चन अगर कोई आता है UNDP पे, तो आप एक पाई चार्ट बना सकते हैं कि एजुकेशन, 3 कंपोनेंट्स होते हैं HDI के अंदर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। तो आप इन तीनों को आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं, और आप उसे सब कंपोनेंट ऐसे एरो बना के दिखा सकते हैं। हब एंड स्पोक डायग्राम बना सकते हैं, लाइन डायग्राम बना सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें आपकी कॉपी स्टैंड आउट करेगी इसकी वजह से, क्योंकि एग्जामिनर भी 15,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, 13,000 बच्चे, और सबकी कॉपी चेक करते करते सेम आंसर्स, तो इट गेट्स वेरी मोनोटोनस फॉर हिम और हर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कॉपी स्टैंड आउट करे कंटेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, एंड आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम इट, कमिटीज, कोट्स आप डाल सकते हैं। जैसे अगर कैग का क्वेश्चन इस साल आया था, तो आप कैग के क्वेश्चन में आप B.R. अम्बेडकर का कोट लिख सकते हैं। B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि आई थिंक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, और आप ये लिख के और आप कैग को कोट करके आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148 to 151 के अंदर इसकी पावर्स हैं, और ये वहां पे एस्टैब्लिश्ड है। तो ये बहुत सुंदर लगेगा आपका GS2 के अंदर। कंक्लूजन में मैंने बताया आपको SDGs कर सकते हैं, आप इसके अलावा कमिटीज देख सकते हैं। विकसित भारत बाय 2047, $30 ट्रिलियन GDP बाय 2047, या फिर आप एजुकेशन से कुछ रिलेटेड तो आप लिख सकते हैं नालंदा स्पिरिट फॉर एजुकेशन रिवाइव करना होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू PM मोदी, द टाइम हैज कम टू रिवाइव नालंदा स्पिरिट फॉर एजुकेशन एंड पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल एजुकेशन हब। आप ऐसी सी बातें लिख सकते हैं कि इससे आपका कंक्लूजन शाइन करेगा, तो आप ये कर सकते हैं। एंड तो लेट्स मूव ऑन टू GS2 नाउ। GS2 में हमारे पास पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये मोटे मोटे ये मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास GS2 में। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो यू मस्ट स्टिक टू लक्ष्मीकांत, नथिंग एल्स। आप लक्ष्मीकांत करें, आपका उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड PYQs एनालाइज करें, क्योंकि GS2 के अंदर दे हैव अ सेट पैटर्न जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्वेश्चन हमेशा बनता है,
इस साल कैग पे आया था, लास्ट ईयर आई थिंक कोई नेशनल कमीशन ऑफ SC ST, NCPC या फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपने इनकी प्रिपेयर कर लिया आंसर्स, तो आप इनका आंसर्स बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे लक्ष्मीकांत काफी अच्छे से रिवाइज करें। आर्टिकल्स आपको सारे याद होने चाहिए, गवर्नर का आर्टिकल, प्रेसिडेंट का आर्टिकल, इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंदर होती है, वीटो पावर किसके अंदर है, क्लेमेंसी पावर किसके अंदर है उनके पास, यानी कि पार्डनिंग पावर्स किसके अंदर है। तो आपको आर्टिकल नंबर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एक कंपोनेंट है GS2 का जो बहुत ही इग्नोर्ड है, और GS2 वो पेपर है जिसके अंदर आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसमें 120 बच्चों का आ जाता है स्कोर, तो आपका GS2 स्कोर बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में आपको मेक श्योर करना है कि आप इसका अलग से पढ़ें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, NGOs के बारे में, उनके ऊपर नोट्स होने चाहिए, आपके 2 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर होना चाहिए, एंड वेरियस अदर टॉपिक्स जो आपको गवर्नेंस के अंदर दे रखे हैं, आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए उसके ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशंस इज वेरी मच करंट अफेयर्स बेस्ड इन GS2। तो वो 4 क्वेश्चंस आते हैं करंट इंटरनेशनल रिलेशन के, 9th 10th एंड 1920। तो एक क्वेश्चन होता है डायस्पोरा के ऊपर मोर और लेस, एक क्वेश्चन होता है बॉडी के ऊपर, एक होता है जो करंट इशू चल रहा है वर्ल्ड में, एक इंडिया से रिलेटेड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सारे 4 टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे हैं आपके प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। डायस्पोरा, बॉडीज, तो बॉडीज में आप क्या करें, क्योंकि सारी बॉडीज प्रिपेयर करना तो इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। तो आप UN की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसके, आप प्रिंसिपल ऑर्गन्स के फंक्शंस देखिए, मैंडेट क्या है, उसके अलावा उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं कुछ। तो आप हर एजेंसी, 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं UN की, आप मेन की आप मैंडेट देख लीजिए क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, WMO क्या करता है, WIPO क्या करता है, एंड जस्ट लाइक दैट आप पढ़ लीजिए। जैसे इस साल क्वेश्चन मेंस में आया था सेंट्रल काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ UNSC। तो आपको इन चीजों के बारे में अगर आपको प्रिपेयर्ड है तो आपका आंसर काफी अच्छे से निकलेगा। तो आप उस दिन आप लिख के आएंगे तो आपका इट विल बी बेटर देन अदर्स। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यू हैव टू राइट एन आंसर जो बाकियों से बेटर हो। इट शुड नॉट बी परफेक्ट, तो आप परफेक्शन को चेज मत करिएगा। तो दैट इज फॉर GS2 आई थिंक। एंड आपको मल्टीपल डायमेंशनल आंसर्स लिखने हैं, दैट इज वेरी राइट, वन कमेंट हैज कम अप। तो आपको बेसिकली जैसे कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसमें NCSC NCST का क्वेश्चन होता है, तो हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर ही पॉइंट्स हैं, तो आप वो करें। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर्स नहीं बन रहे हैं, आपको पॉइंट्स ज्यादा नहीं आ रहे हैं दिमाग में, तो आप स्टार्ट कर दीजिए कि भाई आप यू कैन स्टार्ट राइटिंग अबाउट इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ दैट थिंग, यू कैन स्टार्ट राइटिंग अबाउट की अदर कंपोनेंट्स ऑफ इट। और क्वेश्चन के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं, आप सब डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को, और अगर आप इसे 2-3 में डिवाइड कर देंगे और 3-3 पॉइंट लिख देंगे हर में, तो 9 पॉइंट्स हो जाते हैं ये, विच इज वेरी गुड। अगर आप 10 मार्कर्स में आइडियली यू शुड राइट 12 पॉइंट्स, 10 to 12 पॉइंट्स, एंड 15 मार्कर्स में यू शुड राइट 15 to 17 पॉइंट्स। तो ये आपका एम होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू GS3 नाउ। GS3 इज अ वेरी इट्स अ वेरी सब्जेक्ट इंटेंसिव पेपर, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इट्स अ वेरी मल्टी डायमेंशनल पेपर। तो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है हमारे पास, वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, वी हैव एनवायरमेंट, वी ऑल्सो हैव डिजास्टर मैनेजमेंट हियर। तो हर किसी के इक्वली ही क्वेश्चंस आते हैं। आई फील इसमें आपको सिक्योरिटी से स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन अपनी। सिक्योरिटी इज अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, आपके वो सिलेबस में दे रखे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग दे रखा है हमारे को, वेरियस अदर नार्को टेररिज्म, एक्सक्यूज मी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे है, क्या है, लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड अदर थिंग्स। तो आपको ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर पॉइंट। आपका इस पे 1 पेजेस 2 पेजेस प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आपको कैसे करना है, आपको इंट्रोडक्शन, आपका नोट्स ऐसे होने चाहिए इन चीजों पे, सिक्योरिटी पे। डेफिनेशन होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक फेमस डायग्राम होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो आपका इंट्रो लिखते हैं, आप ये डायग्राम बना दीजिए मनी लॉन्ड्रिंग का, फिर आप बताइए क्वेश्चन में जो भी है आपके नोट्स में होना चाहिए कि किस किस तरीके से, व्हाट आर द वेज जिससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इफेक्ट्स क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के इंडियन इकोनॉमी पे, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इंटरनेशनल स्टेप्स भी क्या हैं। सिक्योरिटी में इंटरनेशनल स्टेप्स भी पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल स्टेप्स। और फिर आप कंक्लूजन में आप एक कमेटी का नाम ले सकते हैं, या फिर कुछ आप पॉजिटिव एंड पर आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया सिक्योरिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज करंट अफेयर्स बेस्ड। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी मैगजीन ले लीजिए, PT मेंस 365 आती है विजन की, एंड सम अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो पोस्ट कंपाइल देयर कंपाइलेशंस। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप मेंस 365 करें रेफर।
इट इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट फॉर साइंस एंड टेक, क्योंकि आप यू कैन मोर और लेस आप वो कर सकते हैं प्रिडिक्ट कि क्वेश्चन क्या आएगा. लास्ट ईयर चंद्रयान 3 आया था, एवरीबडी न्यू कि चंद्रयान 3 आएगा, तो यू नीड टू प्रिपेयर इट थरली कि आपको क्या होना चाहिए. इस साल आदित्य L1 वाज वेरी मच इन न्यूज, वो क्वेश्चन आया नहीं लेकिन इट वाज वेरी मच इन न्यूज. तो अगले साल के लिए आप जब मेंस लिखेंगे सब, तो आपको ध्यान रखना है कि इसरो का कौन सा मेन प्रोजेक्ट उस दिन हुआ. गगनयान हो सकता है मे बी अगले साल, तो आपको गगनयान के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए कि गगनयान का एम क्या है, गगनयान से बेनिफिट्स क्या होंगे, गगनयान के चैलेंजेस क्या हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज, एंड कंक्लूजन आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस पे. तो दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 4 क्वेश्चंस ऑन 2-3 क्वेश्चंस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आते हैं, तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. देन कम्स इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर. इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स इन GS3 जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. ये बहुत ही लिमिटेड इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है. फॉर इंस्टेंस GS3 के लिए आई एम रीडिंग आउट जो मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए थे नोट्स, तो मैं आपको उनका बताता हूँ. इंक्लूसिव ग्रोथ, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन होनी चाहिए रेडी, कि आपको लिख देना अकॉर्डिंग टू OECD इंक्लूसिव ग्रोथ इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल सेक्शंस एंड रीजन्स. खत्म. 2 लाइन की आपने डेफिनेशन लिख दी, आपने OECD भी लिख दिया, आपने डिफाइन भी कर दिया, तो इट विल बी वेरी वेल रिसीव्ड, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे इससे. एक नीचे डायग्राम बना दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, और आप उसमें लिख दीजिए सोर्स 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया, और फिर आप बना दीजिए अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के. तो आपका ये डायग्राम हो गया. आपको फिर की रूल क्या क्या है, आपको ये चीजें होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम इट जेंडर बजटिंग, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये एक हॉट टॉपिक है इस साल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर क्वेश्चन भी आया था GS3 के अंदर. अपार्ट फ्रॉम इट MSMEs इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स. तो MSMEs जब आप लिख रहे हैं तो आपको MSME की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि MSME की बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू DPIIT. आप वो लिखिए, उनका रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, चैलेंजेस क्या फेस करती है MSMEs, और आप वे फॉरवर्ड में डेफिनेटली लिख के आए UK सिन्हा कमेटी. तो आपको GS3 में कमिटीज, डेटा, स्ट्रक्चरिंग, डेफिनेशन टू द पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलते हैं GS3 में. तो आपको ये मेक श्योर करना है. GS3 में दिस टाइम आई स्कोर्ड 87 मार्क्स समवेयर अराउंड, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर बट आई थिंक इट वाज 87. तो इट वाज अ मॉडरेटली गुड स्कोर. तो आपको इन पे ध्यान देना है. नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज अगेन बहुत आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है अगर आपको टॉपिक्स पता हो और आपने PYQs देखे हो. तो आप PYQs देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इज वन ऑफ दोज. एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज कौन कौन सी हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं उनकी वजह से, क्या क्या नुकसान होते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ टॉपिक जिस पर आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए. मिलेट्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है मिलेट्स के, कि क्यों मिलेट्स, क्या व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स फॉर अडॉप्शन ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर प्रमोटिंग मिलेट्स. और फिर आपको कंक्लूजन में लिख देना मिलेट्स के बारे में. आप लिख सकते हैं कि 2023 वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड फॉर दोज रीजन मिलेट्स शुड बी प्रमोटेड. ऐसी सी बातें आप लिख सकते हैं. क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इंडिया का, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. ये इट्स अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ये GS3 में ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर्स पे आता है. तो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रिपेयर्ड होना चाहिए आंसर्स की. डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, फायदे, बेनिफिट्स क्या है उसके, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड में कौन कौन सी कमिटीज ने क्या बोला है, एंड क्या पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग का. और गवर्नमेंट स्कीम्स आपको, हाँ लाइक आई सेड GS3 के अंदर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स सारी याद होनी चाहिए. मतलब हर टॉपिक पे आपको यू शुड नो एटलीस्ट 4 गवर्नमेंट स्कीम्स दैट यू कैन राइट. अगर आपसे फूड प्रोसेसिंग भी पूछा है तो यू शुड बी एबल टू राइट PM किसान संपदा योजना, PM FME स्कीम, मेगा फूड पार्क स्कीम, PLI स्कीम फॉर FPI, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. तो आप ऐसे से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे. कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर दी लीडर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. तो हमें उनसे सीखना चाहिए. तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर. तो आपको ऐसे करते करते सारे सब टॉपिक्स के 2 पेजेस बना लीजिए. तो आप टॉपिक्स सिलेबस देखिए, उन पे बनाएं और थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करें टेस्ट पेपर्स लाके, जो उस साल आप जिस साल अपीयर कर रहे हैं मेंस में, क्योंकि टेस्ट में भी वो क्वेश्चंस आएंगे जो उस साल न्यूज में थे काफी. तो आपको आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपका काम कम हो जाएगा काफी. सो दैट इज दैट. वन लास्ट थिंग वुड बी एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. एनवायरमेंट तो आपने जैसे शंकर आगे से पढ़ा, मोर और लेस वैसा ही क्वेश्चंस आएंगे कि एनवायरमेंट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं
कि व्हाट इज अर्बन स्मॉग, गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है, अर्बन स्मॉग को रोका कैसे जा सकता है, वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन को रोका कैसे जा सकता है, स्टेप्स क्या है, वाटर प्योरिफिकेशन की क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट। इन डिजास्टर मैनेजमेंट की आपको कोई भी एक आप फोरम आईएएस की कंपाइलेशन आती है, उसमें सारे डिजास्टर्स होते हैं, आपको उसकी डेफिनेशन मैप। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका प्रिपेयर्ड होने चाहिए आंसर्स। आपको लैंडस्लाइड के बारे में पता होना चाहिए कि लैंडस्लाइड की डेफिनेशन क्या होती है, एंड आपका पता होना चाहिए कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम रिमेंबरिंग इट राइट, 12.6% ऑफ इंडियन लैंड इज प्रोन टू लैंडस्लाइड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हो गया। नेशनल फ्लड कमीशन बोलती है 40 मिलियन हेक्टेयर्स इज प्रोन टू फ्लड्स इन इंडिया। तो आपको ये डेटा बिल्कुल याद होना चाहिए जीएस3 के लिए। आपको सारों की डेफिनेशन, डेटा, व्हाट आर द कॉजेज, मतलब रीजन क्या है कि फ्लड्स होते क्यों हैं, वो रीजन, और सोल्यूशन क्या है फ्लड्स को रोकने के लिए। और आपका कंक्लूजन में आपका वो देयर आर सम कंक्लूजंस, रेडीमेड कंक्लूजंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपको लिखने हैं। तो डू दैट। GS4, लेट्स मूव ऑन टू GS4 नाउ। GS4 इज अनदर पेपर जो बहुत ही वेल रिवॉर्डिंग पेपर है। आपको GS4 पर एक्सेप्शनली ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एथिक्स के पेपर में मार्क्स अच्छे आते हैं अगर आप अच्छा आंसर लिख के आ रहे हैं तो इसमें दो सेक्शन है हमारे पास। सेक्शन ए इज थ्योरेटिकल एंड सेक्शन बी इज केस स्टडीज। तो सेक्शन ए के अंदर सिलेबस इज गिवन कि आपको दे रखा है इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के, एंड थिंग्स लाइक दैट, कि फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स क्या होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि नोलन कमेटी ने 7 वैल्यूज दी हैं, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, ओपननेस, ये 7 वो थी। तो आपको याद होना चाहिए। आप इसका निमोनिक बना लीजिए, IAS होलो मैंने बना रखा था, IAS HOLO, तो आपको याद हो जाएंगी कमिटीज, ऑल दी फाउंडेशनल वैल्यूज। तो GS4 में स्कोर वेल करने का है, आपको सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स के, कि मणिपुर के IAS ने क्या किया, उन्होंने रोड बना दिया। आपका पंजाब में सेक्स रेशियो ठीक करने के लिए उन IAS ने क्या किया, तमिलनाडु में क्या हो रहा है। आप जब बुक पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, आप कोई भी सोर्स रेफर कर लीजिए फॉर एथिक्स, आपको ये एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे इंटेग्रिटी के, वरना अदरवाइज आप ग्रेट लीडर्स के भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग, एम विश्वेश्वरैया सर इज यूज्ड टू कीप 2 सेपरेट कैंडल्स इन हिज ऑफिस। एक थी ऑफिस के लिए कैंडल जो ऑफिस मनी से थी, एक उनकी पर्सनल कैंडल थी जो उन्होंने अपने पर्सनल मनी से करी थी, पर्सनल यूज के लिए। तो ये था, आप ऑफिस आवर्स के बाद अपनी पर्सनल कैंडल ऑन कर लेते थे। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं। अब APJ अब्दुल कलाम नेवर टुक गिफ्ट्स फ्रॉम एनीबडी एल्स। जब भी गिफ्ट उनको मिला है बाहर से, वो हमेशा इंडियन ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देते थे। तो आप ये एग्जांपल्स लिखेंगे, दिस शोज इंटेग्रिटी। सोक्रेटिस डेथ ट्रायल, दिस शोज इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशंस, एग्जांपल्स बहुत सारे। बेनिफिट्स क्या है, इंटेग्रिटी अगर हमारे पास होगी तो क्या बेनिफिट्स हैं, कि हमारे को सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी, हमारी इंटेग्रिटी होगी तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी, वर्क कल्चर इंप्रूव होगा डिपार्टमेंट के अंदर, आपकी यू विल इमर्ज एज अ लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी और सिटीजनशिप्स के बीच में कनेक्टिविटी होगी, राइट। एंड वही बोलते हैं वेबेरियन ब्यूरोक्रेट्स विल इमर्ज एज अ वेबेरियन ब्यूरोक्रेट्स, ऑल दैट यू कैन राइट, दैट विल बी वेल रिसीव्ड। तो आप ये ध्यान रखना है आपको। मतलब GS4 के अंदर जो पार्ट ए है सेक्शन ए, दैट इज प्री प्रिपेयर्ड बेसिकली। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखें, समझे कि एटीट्यूड पे पूछा है, एप्टीट्यूड पे पूछा है, एंड आप लिखना स्टार्ट करें। एंड मेक श्योर यू आर ऑल्सो मेकिंग सम डायग्राम्स, कि फॉर एग्जाम्पल परसुएशन पे क्वेश्चन आता है तो आपने डेफिनेशन लिख के डायग्राम बनाना है आपको। ट्रायड ऑफ एरिस्टोटल, इथोस, पैथोस एंड लोगोस, ये 3 ट्रायड हैं परसुएशन के, तो आपको ये लिखना है। एंड फिर आप बाकी तो इट्स ऑल आंसर राइटिंग। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप सीखते जाएंगे एंड यू विल बी गुड एट इट। केस स्टडीज you can only learn it through practice. You start writing tests for case studies. केस स्टडीज का एक सेट पैटर्न फॉर्मेट होता है लिखने का। आपको केस पढ़े जल्दी से कि क्या है केस स्टडी, व्हाट इज इट अबाउट। फिर आप उसमें लिख दीजिए कि इंट्रोडक्शन में छोटा इंट्रोडक्शन लिखें कि दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ लूजिंग इंटेग्रिटी बीइंग लॉस्ट विद सिविल सर्वेंट्स। क्या है दिस, ऐसा आप लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। This is a classical case of this value being lost in civil services or maybe some other public office, आप लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद स्टेक होल्डर्स बना दीजिए इफ यू हैव टाइम। तो आप स्टेक होल्डर बनाइए कि कौन कौन सी केस स्टडीज में स्टेक होल्डर्स हैं।
फिर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप स्टार्ट कर दीजिए उसको आंसर करना। एंड कोर्स ऑफ एक्शन में ट्राई टू ब्रिंग इन सम फिलोसोफर्स कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस बिकॉज मैं वर्चुअल एथिक्स को अपहोल्ड कर रहा हूँ। इफ आई डू दिस आई विल कम आउट एज करेजियस, मैं ये कर रहा हूँ ताकि यूटिलिटेरियनिज्म को मैं प्रमोट कर सकूँ, क्योंकि बिकॉज माई एक्शन विल ब्रिंग मैक्सिमम प्लेजर टू मैक्सिमम पीपल। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि ये जो मेरा एक्शन है ये कांतियन डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के साथ इन लाइन है कि राइट मीन्स मैं अडॉप्ट कर रहा हूं एक्शन में, तो आप ये लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि मे बी आपको पॉलिटिकल प्रेशर हो तो आप बोल सकते हैं मैं निष्काम कर्म करूंगा, लाइक हमारे इंडियन फिलोसफी टीचर्स, कि मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा, जो भी ड्यूटी मेरी है मैं वो करूंगा, चाहे मेरे साथ कोई भी whatever the consequences may be, I'll honestly do my job. तो you just write निष्काम कर्म, it will be very well received. तो आपका ethics paper I think is that. Ethics paper is a very lengthy paper by the way. तो you should make sure that आपका ethics paper complete होना चाहिए, और ये तब होगा जब आपने mocks लिखे होंगे GSC papers में, और GS4 especially. और GS4 happens on the second day, third day almost, और लास्ट पेपर होता है, तो आप थक भी जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं, पर आपको 3 घंटा वो लिखना भी होता है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। You have to write multiple tests and then you will be very used to it. So that is that. Let's now move to my optional, which was geography. And तो my optional was geography. I did my BSc Physics honors, तो मेरा background physics में था, but I opted for geography. तो optional choose कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कैसे किया था, मुझे पता था कि मैंने ह्यूमैनिटीज कभी पढ़ा नहीं है, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, कि मेरे को पता था कि मैंने कभी ह्यूमैनिटीज पढ़ा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आई नेवर न्यू कि इन सब्जेक्ट्स में क्या है, फिलोसफी, तो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम इट फिजिक्स मेरा बैकग्राउंड ही था, बट आई न्यू कि फिजिक्स आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू कैरी, क्योंकि उसका जीएस के साथ ओवरलैप कम होता है। बट देन आई वाज ईदर आई वाज गोना टेक मैथ्स और ज्योग्राफी, बट देन मैथ्स के साथ भी वही केस था कि मैथ्स इज ऑल्सो बहुत कम ओवरलैप होता है जीएस के साथ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट आप मैथ्स यूज कर सकें। ज्योग्राफी आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, मैंने जब जीएस पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट आई रियली लाइक्ड इट, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई टुक इट। आई आल्सो हैड अ गुड मेंटोर जिन्होंने मुझे बोला कि ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, तो ही हैड दैट इन्फ्लुएंस। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने ज्योग्राफी हाई स्कूल में पढ़ाई भी 11th-12th के बच्चों को, जिसकी वजह से आई डेवलप दैट एक्यूमेंट फॉर ज्योग्राफी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ज्योग्राफी का ओवरलैप जीएस पेपर्स का काफ़ी अच्छा है, दैट इज व्हाई आई टुक ज्योग्राफी। It is a bulky subject, but it was a very rewarding subject for me. I scored 278 marks in geography. Paper 1 129 and paper 2 149. That was my score, and that's that. Paper 1 के अंदर there is a different strategy, and paper 2 is in paper 1 is world geography and paper 2 is Indian geography. So आपको ये देखना है कि आपकी strength और weaknesses क्या हैं, जो optional identify करते हुए। And I think if people would like, so I would also discuss my optional strategy here, if the audience wants. तो मैं optional की strategy भी इधर डिस्कस कर लूँ। Okay, so let's discuss optional strategy as well. Okay, so paper 1 in optional in geography is related to world geography more or less. It's theoretical. वो पेपर 1 के अंदर 2 हमारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेक्शन बी इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वी हैव वेरियस सब्जेक्ट्स इन सेक्शन ए। फिजिकल में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, वी हैव एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एंड बायोज्योग्राफी, सॉरी। एंड इन ह्यूमन ज्योग्राफी वी हैव पर्सपेक्टिव्स, रीजनल प्लानिंग, population geography, settlement geography, economic geography, and lastly we have models, theories and laws. तो आपको पेपर 1 में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, दैट आपके कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी मैं थीम छोड़ दूंगा, सारी थीम्स पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आप कोई जहां से भी फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं वहां से करें। आई फील ज्योग्राफी के लिए 500+ बाय हिमांशु सर इज अ वेरी गुड कोर्स, तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा उससे, आपका एनरिचमेंट भी हो जाएगी उससे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक कीवर्ड जो हमारा सिलेबस में दे रखा है ज्योग्राफी के लिए अंदर, तो यू शुड हैव 1 पेजर नोट्स। मैंने लास्ट अपना 2023 वाले अटेम्प्ट में आई मेड श्योर आई हैव 1 पेजर ऑन एवरी टॉपिक, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी बोथ। एंड मूविंग ऑन टू दैट ह्यूमन ज्योग्राफी बिट, ह्यूमन ज्योग्राफी
इज स्लाइटली मोर रिवॉर्डिंग। आई थिंक अगर आपको मौका मिले, क्योंकि आपको चूज करने होते हैं 2 क्वेश्चंस इन ऑप्शनल्स, तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी से करें। आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका मॉडल सीरीज एंड लॉज एंड पर्सपेक्टिव्स शुड बी वेरी गुड। लाइक आई सेड, 1 पेजर नोट्स ऑन एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड। और अगर आप इफ यू कैन, तो आप एक अपना कंपेनियन ढूंढ लीजिए ऑप्शन का, जो आपकी जिसके साथ आप प्रिपेयर कर सकें। आपका ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप प्रिपेयर कर सकें। तो दैट इज पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। आई फॉलोड द बुक्स वर द सेम। सविंदर सिंह, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह मैंने यूज करी थी, एंड ऑप्शनल के नोट्स मैंने यूज किए थे फ्रॉम हिमांशु सर एंड शबीर सर की क्लासेस मैंने की थी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, पर्सपेक्टिव्स के लिए बुक होती है। वी हैव अ बुक, इट्स राइट हियर, R.D. Dixit is a very famous book, तो you should definitely refer to that. And model theories and laws, तो आपको हर किसी का बुक्स पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं। PYQs are the king in optionals, they are paramount। आपको सारे PYQ करने हैं, आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप पर्सपेक्टिव्स एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, पर अगर आप एक बार PYQ आप उसका एनालाइज करेंगे, then you'll realize पर्सपेक्टिव से काफी सेम क्वेश्चंस आते हैं। They will ask about humanistic geography, behavioral geography, radical geography, और वो उनका क्वेश्चन सेट है। What is it? कौन से contributions थे and what were the challenges? तो आपको ये ध्यान रखना है। सोर्सेज आपको कौन कौन से आपको सेट रखने हैं वैल्यू एडिशन के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी में आप सविंदर सिंह पढ़ें, आप सारी चीज अच्छे से आप इफ यू डू इट दैट इज गुड इनफ। पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए बुक पढ़ें, सोर्स नोट्स करें, आपकी जो भी कोचिंग आपने जहां से करी है उसके नोट्स हैं, प्लस 500 प्लस के नोट्स आप करें। एंड PYQs के आप सारों के आंसर्स बना लीजिए मोटे मोटे, हर टॉपिक के ऊपर आप 1 पेजेस बनाएं बुक्स में से। बुक्स तो स्टैंडर्ड ही है सविंदर सिंह, एंड फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी देयर इज नो मतलब एज सच बुक। मॉडल थ्योरीज एंड लॉज आपको नोट से ही करना चाहिए एंड ऑल। मूविंग ऑन टू इंडियन ज्योग्राफी नाउ। इंडियन ज्योग्राफी इज द रिवॉर्डिंग पार्ट। यहाँ पे आई स्कोर्ड 149 इन इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने एक डिफरेंट चीज करी थी जो लोग नहीं करते हैं मोस्टली। इंडियन ज्योग्राफी के मैंने 1 पेज नोट्स उसके भी बनाए थे सारे। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए इट्स अ वेरी फेमस बुक which I followed. Khullar is a very famous book, but I also followed this book, Majid Hussain by Indian Geography. So it is a very good book. आप इससे अपने नोट्स बनाइए हर टॉपिक के, कि आपको मॉनसून के ऊपर नोट्स होने चाहिए, जेट स्ट्रीम्स के ऊपर नोट्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट रिसोर्सेज में आपके नोट्स होने चाहिए कि व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी पे आता है फ्रीक्वेंटली। वाटर क्राइसिस इज अनदर क्वेश्चन जो हमेशा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर। Another part is like up settlement geography के अंदर they have a very famous question, historical evolution of Indian cities। 2023 में geography option के अंदर वो आया था, तो you have to prepare it। books के अंदर वो दे रखा है, माजिद हुसैन के अंदर भी है, and there is another book उसके अंदर भी है। तो you need to make diagrams in your optionals। For instance historical evolution में I wrote कि भाई what do you mean by urban morphology, उसकी definition according to Doxy artist definition ये है। and then I made diagrams कि historical evolution कैसे कर सकते हैं। for example like somebody asked कि maps कैसे याद करें। maps को याद करने का एक ही तरीका है, आपको बार बार बनाना होगा अपने हाथों से। तो मैंने जब वो बनाया, मुझे वो historical evolution वाला मैंने आंसर याद कर रखा था, मैंने बना रखे थे नोट्स उसके। तो आपको एंशिएंट से स्टार्ट करना है कि IBC में और गुप्ता पीरियड में कैसी होती थी। IBC के अंदर तो हमारे भी ग्रिड पैटर्न, फिर हमारे मीडिएवल टाइम में क्या कैसी सिटीज बनने लग गई, बाजार बेस्ड मॉडल एंड ऑल। हमारे मॉडर्न कॉलोनियल टाइम में हमारे पास वी हैड प्लान्ड सिटीज कमिंग अप, वी हैड उनमें न्यू CBDs ऐड हो गए थे, राइट। कनॉट प्लेस वाज, मैंने कनॉट प्लेस का मैप बनाया था उसमें, क्योंकि कनॉट प्लेस वाज अ न्यू CBD एडेड टू दिल्ली बाय ब्रिटिशर्स, तो मैंने उसका मैप बना दिया था CBD के लिए। देन यू गो टू पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में यू राइट प्लान्ड सिटीज। प्लान्ड सिटीज में आई मेड द डायग्राम ऑफ चंडीगढ़ का मैप बनाया। तो आई मेड 4 डायग्राम्स इन 20 मार्कर, 4-5 डायग्राम्स हर पेज पे, एंड दीज आर वेरी लाइक डायग्राम बहुत अच्छे से थे। एंड दे हैड आई आल्सो लेबल्ड देम। जैसे CP के मैप में आई स्टिल रिमेंबर, तो मैंने इनर सर्कल आउटर सर्कल लिखा। आई मेड बाबा खड़क सिंह मार्ग आई रोड, उसके अलावा जनपथ रोड लिखा मैंने, बाराखंबा रोड, ये रोडों के नाम भी लिखे मैंने रोड्स के। तो यू नीड टू डू दैट, एंड आई थिंक यू नीड टू मेक 1 पेजर्स, हैव अ ग्रुप जिसके साथ आप कर सकें। पेपर 2 में मैपिंग के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
यू नीड टू मेक श्योर कि आपके 7-8 ठीक हों, तो आपको PYQs करनी पड़ेंगे उसके। तो दैट इज दैट। तो PYQs आपको सारे एनालाइज करने हैं, 10-20 साल के जितने भी हैं आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लिखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे लिख सकते हैं, बट आई थिंक टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs एनालाइज करना एंड राइटिंग दोज PYQs। तो आई इंटेंशनली डिड दैट, तो वो मुझे बेनिफिट हुआ, रिवॉर्ड हुआ था, एंड दैट इज दैट फॉर ज्योग्राफी। अपार्ट फ्रॉम इट वी कैन मूव ऑन टू नाउ मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आई वुड कीप इट शॉर्ट फॉर इंटरव्यू का रिजल्ट्स भी, मेंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग। तो ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल ऑफ यू मेक इट। एंड हाउ डू वी गो अबाउट इंटरव्यू? सो बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन में डैफ आता है, you have to fill there are basically 4 headings in DAF that you have to fill. So we have a prizes and medals heading, sports, position of leadership held, extracurricular activities. तो आप make sure करें आप इसमें दो हेडिंग, दो एंट्रीज तो लिखें, and don't lie on these headings. Try to be honest, because इंटरव्यू में पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं पैनलिस्ट को, क्योंकि वो 2,000-2,500 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं। They know, they are very seasoned. They know who's lying and who's honest and who's lying. So don't do that. Don't try to bluff them. So that is that. तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में basically give more and more mocks, क्योंकि आपको you will get comfortable with that setting कि आप बीच में बैठे हैं and there are 5 people around you और जो आपसे बात कर रहे हैं। आपको फिर after 8th 9th mock, I gave 10 mocks in total for during my preparation. So do that. And इंटरव्यू की प्रिपरेशन में you should prepare your optionals. You should prepare your home state. कि home state के क्या issues हैं आपके। I come from हरियाणा, तो हरियाणा के there are 10-15 issues, major issues that you need to know. Like stubble burning is one of the prominent issues. तो stubble burning पे मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी था क्वेश्चन कि what is stubble burning, और stubble burning इशू अभी रिसेंटली 10-15 साल में क्यों उठा है, एंड क्या क्या सोल्यूशंस आप ऑफर करते हैं। since I already prepared it, तो I gave a very good answer on it. तो you need to do that. आपको अपने स्टेट पे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट आपकी जो हॉबीज हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी हॉबीज में आई रोट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाज वन, टीचिंग इज वन ऑफ माय पैशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम इट सो दीज आर द वंस आई कैन रिमेंबर राइट नाउ। आई आल्सो प्ले क्रिकेट, तो आई रोट ऑल ऑफ दैट स्पोर्ट्स में। तो दे आस्क मी क्वेश्चंस ऑन ऑल ऑफ इट, आपका ऑप्शनल, होम स्टेट और योर इंटरेस्ट्स। तो यू शुड बी वेरी थरो विद इट। एंड अगर आप जब आप स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना, ऑल दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे आल्सो प्रोवाइड यू PDFs कंपाइलेशंस फॉर योर हॉबीज। जैसे क्रिकेट की आती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जिम वर्कआउट की आती है, तो आप वो कर सकते हैं। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ देम, आपका उससे प्रिपेयर हो जाएगा। एंड इफ यू आर इनटू सर्विस, फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट जॉइन हरियाणा सिविल सर्विस बट आई वाज पार्ट ऑफ इट। तो they asked me question कि what is it and what do you do, what is the work profile of it. So that was asked from me. So you need to prepare these things. ये चीजें prepare हो सकती हैं, and there are some random questions in interview. So you have either, if you know it तो answer it, and opinion based questions पूछते हैं analytical. So you have to keep your answer short, 3-4 points. Keep it short, answer it, and if you don't know it, be honest and tell them honestly, sorry sir, I don't know, I'll read upon it. आप मॉक इंटरव्यूज देंगे जितना ज्यादा, you'll get very good at it. So that is that. And apart from it, one thing I would highly recommend, कुछ चीजें जो मैंने अपने बैचमेट से भी पूछी सिविल्स में जिन्होंने क्वालिफाई किया. So all of them had the ones who had very good score in interview, 190 plus, 200 plus. I had 173 marks in interview. तो ये मैं उनकी एडवाइस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी एडवाइस नहीं है. तो उनकी एडवाइस ये थी कि बी ऑनेस्ट, ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. इंटरव्यू में आप जब मॉक इंटरव्यूज देने जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आंसर बहुत छोटा दीजिए, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. कई चीजें होंगी जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं एंड यू वुड वांट टू स्पीक मोर ऑन दैट. तो आप उसमें कैपिटलाइज करें, हर बार ही नहीं बट कैपिटलाइज करें अपनी स्ट्रेंथ्स पे. यू हैव टू शो द इंटरव्यू पैनल दैट यू आर पैशनेट अबाउट सम थिंग्स, यू नो अ ग्रेट डील अबाउट सम थिंग्स. तो आप उसमें आपको दिखाना है. अपार्ट फ्रॉम इट, एक बॉल मिलती है 6 मारने की आपको इंटरव्यू के अंदर. अगर आपने उस पर हिट किया तो you'll get a very good score. Also it's also about one more thing, one last thing. Interviews are about कि what kind of person you are, what do you bring to the table. So if you are a very warm person, you always smile, even if you are a very confident person,
आप टेबल पे आपको क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप स्माइल करके बोल रहे हैं सर नहीं पता है, आई विल रीड अबाउट इट, तो वो बहुत अप्रिशिएट होता है। तो आपको मेक श्योर करना है यू लुक कॉन्फिडेंट, यू स्पीक एट अ लाउड वॉइस, बिकॉज 5 लोग बैठे हैं, 5 को सुननी चाहिए आपकी आंसर, एंड देर ऑल्सो एल्डरली पीपल, तो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू फैक्टर दैट इन, देर ऑल 55 प्लस पीपल, 55 प्लस पीपल, तो हियरिंग एबिलिटीज टेंड टू डिक्रीज एट दैट एज, तो यू हैव टू स्पीक लाउडर. So that is all, and apart from it, for your interviews have a group of 4-5 people, 3-4 people would also work. आप सब मिलके prepare करें, and that will, I think that is all, and I think I'll just open the platform for comments now, and if anybody has any questions, I'd be very happy to take them. So I think that's all from my side. I'll take the comments I'll take the questions from the audience now. Okay, one question is why civil services, sir? तो this is a very interview type question, और ये this is a very personal question. तो आपको identify करना पड़ेगा कि आप civils की तैयारी क्यों कर रहे हैं. For me, it was a mixture of both. Like I said initially, कि this exam gives you a platform which is unparalleled. The opportunities which open up at such a young age, you will never get those opportunities in private jobs in corporate world. That is one. Apart from it, the sense of satisfaction that you get, क्योंकि आप nation को भी serve कर रहे हैं, तो आपको the sense of satisfaction that you will get from working for your nation, you will never get that if you work for an MNC. So these are some of the reasons. And apart from it, I mean, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका reason क्या है. These are the reasons for me. अब आपको ढूंढना पड़ेगा, and आपका reason अगर why आपका बहुत strong है, तो आप कितनी भी मेहनत होगी आप कर लेंगे. One other question is कि mock interview और UPSC interview में क्या difference होता है? I think mock interviews and UPSC interviews में ये difference है that mock interviews में they tend to ask you questions and they interrupt also बीच में. They tend to put you in a position जहाँ पे when you're anxious, they would put you in a hot seat. In UPSC's interviews they don't do it. वहाँ पर आपसे question पूछेंगे and they will silently listen to you. In most of the cases this happens. कुछ rare cases होते हैं जहाँ पे ये नहीं होता है. Mostly they want to listen to you, तो they won't interrupt you. आप जो भी बोल रहे हैं वो सुनेंगे, हंसते हुए सुनेंगे. So I think that is one of the differences. And apart from it, mock interviews or UPSC interviews में another difference would be the kind of questions. Sometimes real interview में they don't ask you questions related to your TAF. That happened to me. One of my hobbies was following Indian defense updates. तो मुझसे हर mock interview में I was asked a question on the Indian defense. So they were like, you're a defense expert, tell me about defense exports. Okay, what are the defense indigenization steps going on? Yeah, all these questions. पर real interview में मुझसे मेरे panelists ने और chairperson ने no such question was asked. So that is that. ये difference है. कुछ study में consistency कैसे बनाए रखें? That is another question. So I think there are some ways to do it. कुछ तरीके हैं internal, कुछ हैं external. एक्सटर्नल तरीके कुछ ये हैं कि आप मेक श्योर करें आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ठीक है, कि आप 8-9 आवर्स अगर आप वर्क में पुट इन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज में अपनी लाइफ भी जिए थोड़ी, तो आपका यू विल हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, सपोर्टिंग फ्रेंड्स जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड, ताकि जब जिनसे आप बात करते हैं तो आपको इमोशनली यू फील अपलिफ्टेड, बिकॉज दिस एग्जाम इज अ लॉन्ग एग्जाम. You want to be in a good headspace. Mental health is very important in this exam. तो आपको उसका ध्यान रखना है कि you are not surrounded by people जो negative है. आपको positive रहना है. Failures को भी आपको positively लेना है. I have failed quite a lot and just I was blessed with my parents always supported me. My friends always supported me. तो आप ये कीजिए. I think that is all. Consistency का another thing that you can do is apart from friends, socialize, family के साथ time spend करना, that you can also, अगर आपको लगता है कि आपको, you can also watch some motivational videos on YouTube या motivational songs सुन सकते हैं अगर आपको you feel low on motivation sometimes,
और समटाइम और उसके अलावा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क इन लाइफ. तो आपको हार्ड वर्क तो करना है, चाहे लाइक इट्स ऑलवेज सेड इन लाइफ, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट. So there are a lot of unsuccessful men who were geniuses, but hard work जो करते हैं they always succeed. तो अगर आप हार्ड वर्किंग है, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अपने दिल में रखें कि मुझे करना है एग्जाम, तो सक्सेस कैन ओनली बी डिलेड बट कैन नॉट बी डिनाइड टू यू इफ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन एंड यू आर कंसिस्टेंट. दैट्स ऑल. ITS की ट्रेनिंग के बारे में पूछा है. सो ITS की ट्रेनिंग हैपेंस इन दिल्ली, Indian Institute of Foreign Trade. The reason why I kept ITS above other services was personal again. तो मैंने बाकी सर्विसेज के ऊपर रखी थी. It was my personal preference क्योंकि ITS has a very good work profile. They handle India's foreign trade and they are also involved in FTA negotiations. There are other international deputations to WTO, UNCTAD and other international bodies. So जो आपको इसमें वर्क लाइफ बैलेंस और जो अपॉर्चुनिटीज आप पे ओपन होती हैं, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क जो आपको यहाँ मिलता है, इट इज सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्विसेज. अदरवाइज आप उनमें यू गेट कन्फाइंड टू योर लिमिट्स. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई टुक ITS एंड दैट्स ऑल. सो वन क्वेश्चन इज कि मेंस की तैयारी में कोचिंग नोट से कर रहा हूँ जिसमें 36 बुक्स हैं और 200 पेज की हैं, तो मैं एक साल में कैसे कंप्लीट करूँ. So my answer to this would be, UPSC की तैयारी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है. You have to keep your sources short and you have to keep your sources limited and revise them again and again. जो मैंने आपको सोर्सेज अभी बताए थे, आप उन सोर्सेज पे ही स्टिक करें. आप कोई भी नोट्स मार्केट से ना उठाएं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, आप अपने आप नोट्स बना लेंगे उनके. और ट्राई नॉट टू फॉल फॉर दीज थिंग्स कि टॉपर की नोट से पढ़ लेता हूँ, उससे पढ़ लेता हूँ. द थिंग इज इन लाइफ मेहनत खुद करनी पड़ती है. तो अगर आप वर्कआउट करेंगे तब आपकी बॉडी बनेगी. तो अगर कोई और वर्कआउट कर रहा है जिसने नोट्स बनाए, तो वो बन गया, वो क्लियर हो गया उनका. तो अब आपको क्लियर करना है, तो आपको बुक्स पढ़नी होंगी और आपको मेहनत करके खुद नोट्स बनाने होंगे. दैट इज द ब्लंट ट्रूथ. आई थिंक नोट्स को ना ज्यादा फॉलो करके स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें एंड आपका काफी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चन ना आता हो तो आपको कैसे आंसर करना है. तो प्रीलिम्स में आपको क्या, अगर आप प्रीलिम्स में एग्जॉस्टिवली जब पढ़ेंगे, प्रीलिम्स इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ, इज आल्सो अ गेम ऑफ नंबर्स. तो प्रीलिम्स में आपको देखना है कि आप कितने अटेम्प्ट करते हैं और आपका स्कोर क्या बनता है. तो आई हैव कंसिस्टेंटली स्कोर्ड मोर देन 112 115. तो उसका रीजन ये है इन प्रीलिम्स जीएस में कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी आपको डिवाइस करनी है. मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आई अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. तो आप मेरी फर्स्ट रीडिंग में आई गिव 3 रीडिंग्स टू प्रीलिम्स पेपर. फर्स्ट रीडिंग में आई डू 50 क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपकी नोट्स आपने रिवाइज कर रखी है, आपने बुक्स अच्छे से रिवाइज कर रखी हैं, आपकी स्टैटिक बहुत स्ट्रांग है, तो आपके 50 क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में हो जाएंगे. सेकंड आपका है रीडिंग होगी जिसमें आप 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो आप उनको भी सॉल्व कीजिए मेरे हिसाब से. तो आप ये जो प्रीलिम्स का एक्यूमेंट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, एमसीक्यू सॉल्व करने का, तो आप जितने सॉल्व करते जाएंगे, जितने मॉक्स लिखेंगे प्रीलिम्स के, और जितने आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपका ये एक्यूमेंट डेवलप हो जाएगा और आप समझ जाएंगे यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है. तो आप एक बार यूपीएससी की लैंग्वेज समझ गए ना, तो आपको प्रीलिम्स बहुत आसान लगने लग जाएगा. तो दैट इज दैट. और थर्ड रीडिंग में, तो बेसिकली थर्ड रीडिंग में जितने क्वेश्चन मुझे लगते थे बाकी मैं करता था. मैं 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ मेन पेपर के अंदर, 90 से 95 क्वेश्चन, एंड दैट इज माई स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स. जी. और मेंस और इंटरव्यू में लाइक यू आस्क्ड, तो मेंस के अंदर तो आपको पेपर लिखना ही है. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए, उसकी डेफिनेशन जो आपको पता है उसके बारे में टॉपिक क्या है वो लिखें. इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप. इंटरव्यू में अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट बी ऑनेस्ट एंड टेल देम कि मुझे नहीं आता है. और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो ऑनेस्टली टेल देम कि सर मुझे सिर्फ इतना ही पता है, बट सर आई वुड गो होम एंड रीड मोर अबाउट इट. तो बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लाइक बचपन से सिखाया गया हमें. How to avoid distraction in beginning days of preparation. तो one other person has asked, तो आपको distraction के लिए like I said, आपको देखना होगा कि मैं एग्जाम क्यों देना चाहती हूँ, what are the reasons कि मैं प्रिपेयर क्यों कर रही हूँ. और आप थोड़ी बहुत distraction जिंदगी में रखें भी, क्योंकि एग्जाम लाइफ कैन नॉट ओनली बी अबाउट जस्ट
स्टडिंग 12 आवर्स अ डे, 13 आवर्स अ डे. तो आई थिंक आप 8 आवर्स अ डे पढ़ें, और आपकी जो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, इट कुड बी हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना. ऑल्सो इट कुड बी वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, प्लेइंग गेम्स, या फिर कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हो. तो आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ, आप पढ़ाई भी आपकी अच्छी होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी काफ़ी. सो आपको ये करना है. वन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर सीसैट. तो सीसैट के लिए स्ट्रैटेजी आई फील इज फॉर पीपल जिनका सीसैट बहुत वीक है, तो मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ. ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, मे बी साइंस बैकग्राउंड आपको नहीं लग रहा है, तो आपको सीसैट में क्या करना है कि आपको अपना, यू डोंट नीड टू बी सो कॉन्फिडेंट कि मैं पढ़ूंगा नहीं सीसैट. यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू सीसैट. आपको सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है सीसैट में जो आते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में क्या टॉपिक्स हैं, क्वांट्स में क्या टॉपिक्स हैं, एंड आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या टॉपिक्स हैं. तो आप इनकी टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, और फिर आप हर टॉपिक की क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आप करें. और स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सीसैट का पेपर होता है, आप उसके लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करें, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं. रीजनिंग के अंदर क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. क्यूब्स एंड डाइस, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, अदर टॉपिक्स. क्वांट्स के अंदर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं. HCF, LCM, अदर थिंग्स. तो आपको इन पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए. तो आपको ये होल्ड तब होगा जब आप प्रिपेयर करेंगे, आप मेहनत करेंगे. तो आप इसको, आई थिंक यू शुड डू, आई थिंक 10 years के सीसैट के PYQs एंड ऑल्सो सम क्लासेस. देयर आर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑफर कर रहे हैं. तो लाइक फॉर इंस्टेंस अमित गर्ग सर इज वेरी फेमस फॉर सीसैट क्लासेस. तो आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर आपके दोस्त के पास एक्सेस हो तो. दैट इज दैट. और टेस्ट तो लिखने ही है आपको सीसैट के. और 1 year करंट अफेयर्स इज सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स. प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, आई एम गोना से दिस वन लास्ट टाइम, कीप दिस इन योर हेड. प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक इज द की. तो लॉट ऑफ पीपल विल मिसगाइड यू, बट आई एम टेलिंग यू प्रीलिम्स इज क्लियर्ड बाय स्टैटिक, नॉट करंट अफेयर्स. तो स्टैटिक के क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन होते हैं, और 10-15-20 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे करंट के होते हैं. और करंट में भी अगर आपने मैगजीन पढ़ ली तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज देयर बी वेरी रैंडम क्वेश्चंस, और जो आपको किसी को भी नहीं आते होंगे. तो यू कांट प्रिपेयर एग्जॉस्टिवली फॉर जस्ट 10 क्वेश्चंस. तो आप 80 क्वेश्चंस को इग्नोर मत करें सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए. आपको मेजॉरिटी पे जाना है, ना कि माइनॉरिटी ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस. इजी और मॉडरेट गलत नहीं करने, डिफिकल्ट क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, यू कैन अफोर्ड टू डू दैट. तो दैट इज दैट. रिवीजन स्ट्रैटेजी इज सिंपल. मेंस में स्पेशली काफी काम आती है, और प्रीलिम्स में आप अपने नोट्स बनाइए, कोई बुक ले रहे हैं. I'm a very old school person, so I still write whatever I'm doing. I'll have a book, मैं पढ़ रहा हूँ, I write it on paper, मैं piece of paper पे लिखता हूँ, and I'll make notes out of it. Then I'll read those notes again and again. I think आप एक बार अच्छे से पढ़े बुक को, नोट्स बनाएं, उसके बाद उन नोट्स को आप 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे. और ये मेंस में दिस इज इररिप्लेसेबल. नोट्स को आपको करना है काफी बार रिवाइज. ऑप्शनल्स में स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल के मैंने आई थिंक 6 to 7 टाइम्स नोट्स रिवाइज किए थे, 1 pages. डेली शेड्यूल कैसा रहता था? तो डेली शेड्यूल इज प्रीलिम्स के टाइम, एग्जाम से 2 महीने पहले तो इट्स वेरी हेक्टिक. आई थिंक इट्स द सेम फॉर एवरीबडी. तो प्रीलिम्स से 2 महीने पहले तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर स्टडिंग 10 to 12 hours एटलीस्ट. 10 hours तो पढ़ ही रहे हैं. तो ये इवेंचुअली ग्रेड अप होता है. जैसे कि आप अभी नवंबर-दिसंबर इज आइडियल टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स में. तो एक फेमस सेइंग होती है मेंस यूपीएससी में कि जो नवंबर-दिसंबर में गरजते हैं वो अगले मेंस में बरसते हैं. तो आप मेक श्योर करें इस नवंबर-दिसंबर वाले टाइम को, जनवरी के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें फॉर योर नेक्स्ट कमिंग मेंस. तो व्हाटएवर थिंग्स आई सेड, यू प्रिपेयर 1 page of notes for your GS papers and optionals in this time. And पेपर से एग्जाम से पहले आपका अपने आप टाइम भर जाएगा. मेरा 10 hours 12 hours रहता था सिटिंग बिफोर प्रीलिम्स, एंड बिफोर मेंस तो इट यूज्ड टू बी 10-12 hours, एंड बिफोर एग्जाम लाइक 2-3 weeks और 5 weeks 4 weeks बिफोर एग्जाम तो वो और बढ़ जाता है अपने आप. बट आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं 12 hours 15 hours a week 15 hours a day पूरे साल पढ़ूंगा. दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा
इट विल टेक अ टोल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीट पे बैठे बैठे कमर, आपको गर्दन में इशू हो सकता है, मे बी लोअर बैक में इशू हो सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप फिजिकल फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस विद योर स्टडीज। तो 8 hours a day इज वेरी गुड स्टडिंग। पीवाईक्यूज के ऊपर एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं यूपीएससी के अंदर, इट इज अ सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। पीवाईक्यूज आपको ऑप्शनल्स में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, जो भी आपके ऑप्शनल्स हैं, तो वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन, इट विल बी ट्विस्टेड एंड दे विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, द थीम इज गोना बी द सेम बट दे आर गोना आस्क यू द टॉपिक। तो आपको ध्यान रखना है कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग पीवाईक्यूज थॉरली एंड एग्जॉस्टिवली। सो दैट इज दैट। प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज आई सेड 25-30 साल के आपको करने पड़ेंगे, 95 से लेके आप करें आज तक के, 2023 तक के। एंड अगर आपने ये कर लिया तो आई प्रॉमिस यू आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। एंड मेंस में ऑप्शनल्स में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एसए के अंदर तो दे ऑलवेज आस्क अ न्यू टॉपिक, न्यू कोड्स देते हैं वो। एंड जीएस पेपर्स के अंदर, जीएस 1 के अंदर देयर आर क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, हिस्ट्री के अंदर एंड ज्योग्राफी के अंदर समटाइम्स। एंड जीएस 2 के अंदर yes there is repetition, but GS3 is a paper which is current affairs oriented. उसके अंदर पेपर्स क्वेश्चन यूजुअली रिपीट नहीं होते, बट सम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लाइक आई सेड फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमईज, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इन्फ्लेशन, ये जो इकोनॉमी के कोड हार्डकोर टॉपिक हैं, एंड सम टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, एमएसपी, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे हर साल, क्योंकि ये टॉपिक्स तो मेन टॉपिक्स है ना, एपीएमसी। तो दैट इज दैट। और GS4 के अंदर आपको भी रिपीट होता है। सो दिस इज इट। क्वेश्चन है एमपीपीएससी कोचिंग नोट से कर सकते हैं क्या? तो आई एम नॉट फ्रॉम एमपी एंड आई हैव नॉट एवर अपीयर्ड फॉर एमपी, बट आई हैव गिवन हरियाणा सिविल सर्विसेज व्हिच इज माय स्टेट, एंड मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज के, आई नेवर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद सम हार्ड वर्क फ्रॉम माय एंड आई प्रिपेयर्ड हरियाणा सिविल सर्विसेज, व्हेन आई प्रिपेयर्ड आई क्लियर्ड हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो आई थिंक आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपकी साइड बाय साइड स्टेट की हो सकती है, which can be a plan B as well, which is a very good plan B. तो you will be serving in your home state and आप, it's a very good platform जहाँ पे आप एक impact ला सकते हैं, पब्लिक को सर्व कर सकते हैं and all of that. तो that is, आप definitely आप MPPSC की तैयारी कर सकते हैं नोट से। This is a question: how did you integrate current affairs into static answers effectively? I mean, for writing impactful answers. It's a very good question. तो फॉर एग्जाम्पल वन क्वेश्चन एग्जाम्पल आई वुड, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। तो GS3 के अंदर देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कैपिटी एंड इन्फ्लेशन। तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू NSO, द CPI in May 2024 was 4.25%. आई थिंक दिस यही नंबर था, कुछ ऐसा ही, आई कुड बी रॉन्ग विद द नंबर, बट जितना मुझे याद था यही था मई 2024 में। तो दिस शोज टू द एग्जामिनर कि आपको इन्फ्लेशन, तो बिकॉज इन्फ्लेशन की डेफिनेशन सबको आती है, बट आपने इन्फ्लेशन का करंट अफेयर लिख दिया, आपने NSO भी लिख दिया, यू हैव आल्सो कोटेड अ वेरी क्रेडिबल सोर्स, अकॉर्डिंग टू NSO दिस वाज द इन्फ्लेशन, तो वो समझ जाएंगे। और आप उसमें डॉट लगा के लिख सकते हैं, एंड MPSC प्लेज अ वेरी की रोल इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो आपने इन्फ्लेशन भी बता दी और आपने MPSC को भी कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, उससे। तो दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स into your mean answer writing impactfully to create an impact. So that is all. And if there are any questions, I feel current affairs का weightage मैं आपको बस, I think this is the last question I'll take and then we'll end the session. Current affairs का basically 3 stages हैं. Prelims में सबसे lowest value है current affairs की. Mains is current affairs oriented and you should write current affairs in your mains answer. Interview is all about in current affairs. इंटरव्यू में they will ask you the question जो उस साल उस दिन अखबार में आया था। तो I remember मेरा इंटरव्यू was on 20th March। उस दिन अखबार में जब हम यूपीएससी भवन में थे, तो क्वेश्चन आया, उस दिन अखबार में न्यूज थी, वर्ल्ड IQAir की रिपोर्ट आई थी, हाउ दिल्ली हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। तो ये कई लोगों से उस दिन इंटरव्यू में पूछा था कि दिल्ली में पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं, इज दिल्ली द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, व्हाई इज दिल्ली द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, क्या सॉल्यूशंस हैं, ऑल ऑफ दैट। तो आपको करंट अफेयर्स इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप देखिए आप किस स्टेज पर अभी हैं एंड उस हिसाब से करंट अफेयर्स को प्रायोरिटाइज करिए. So I think that's all for the session. And thank you for attending the session. Thank you for your time and energy. And I hope कि मेरी गलतियों से आप कुछ सीख पाए and you don't make those mistakes, the ones which I made. And I hope all of you clear the exam very soon, this year as well, this year only. I wish you all the best and thank you for attending the session. Okay, I'm going to end the session. Thank you.